قیوم برتر اور تبارک خداوند یسوع مسیح کے اسم قادر میں آپ کو سلام پہنچانا چاہتے ہیں اور گلوری ٹو گاڈ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ خدا آپ سے اور مجھ سے ان دنوں میں ان کلام کے وسیلے سے بات کر رہا ہے۔ ہماری دلی تمنا اور دعا یہ ہے یہ کلام ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں جگہ کر لیں تاکہ 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل لائیں۔ اور دنوں کی مانند جیسا آپ کو پتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی اس تمثیل کو لے کر چل رہے ہیں جس کو تمام دنیا میں بیج بونے والے کی تمثیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاں، ابھی ہم پہلے حصے میں ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بیج بونے والا 4 طرح کی الگ الگ زمین میں بیج بوتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بیج 4 طرح کی زمین میں گرا۔ ایک تو راہ کے کنارے، دوسرا پتھریلی زمین میں، اور تیسرا جھاڑی میں، اور چوتھی زمین جس کو اچھی زمین کہا گیا ہے جس میں 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا بیج پھل لاتا ہے۔ جہاں یوں تو آپ سب کی یہی تمنا ہوگی کہ وہ کلام جو آپ کی زندگی میں حاصل ہوتا ہے 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل لائے، لیکن خاص بات جو ان دنوں میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل لانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کلام کے سننے والے ہوں، دوسری بات کلام کو سمجھیں، غور کریں، گہرائی میں جائیں، تیسری بات کلام کو قبول کریں، اور تب چوتھی بات آپ کی زندگی میں واقع ہوگی اور وہ ہے آپ پھل لائیں گے۔ ہاں، یہ ہماری دعا ہے کہ آپ جن باتوں کو سنتے ہیں ان کو سمجھ سکیں، ان کو قبول کریں اور آپ کی زندگی میں پھل دکھائی دے، آپ کے وسیلے سے دوسرے لوگ برکت پذیر ہو سکیں۔ ہم خدا کے کلام کی جو عبارت سے آج اس تمثیل کو شروع کریں گے، لوکا رسول کی انجیل اس کے 8 باب کی 5ویں آیت ہماری بنیادی آیت ہوگی۔ جی ہاں، سنیے۔ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا۔ آج جس بات کا ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے، اور روندا گیا۔ کئی دفعہ اس حالات سے گزرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب ہم روندے جاتے ہیں، یا جب وہ کلام جو ہمارے اندر بویا گیا ہے روندا جاتا ہے، اور روندے جانے کے سبب سے وہ بیج پھل نہیں لاتا، برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر بیج گہرے چلا جاتا، مٹی میں چلا جاتا، مٹی سے دب جاتا، اچھی زمین حاصل کرتا تو روندا نہیں جاتا۔ دوسری جگہ کہا آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا گیا، روندا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ بوئے جائیں جہاں روندے نہ جائیں۔ ہم آج 3 زندگیوں کا ذکر کریں گے جن میں کچھ جب روندی گئی تو وہ ہار گئیں، روند گئیں، پر کچھ زندگیاں جن کو لوگوں نے روندنے کی کوشش کی پر انہوں نے ان کو روندنے نہیں دیا۔ ہاں، جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے تو دشمن کوشش کرے گا آپ کو روندنے کی، گندی گندی باتیں کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ ڈکیت بن جائیں، بدماش بن جائیں، تمنچا لے لیں، گولیاں اپنے سینے پہ لگا لیں، لمبی لمبی مونچھیں بنا لیں، آپ سے کوئی گندی بات نہیں کہے گا۔ لیکن اگر آپ براہ راست کی بات کرنے لگیں، راست بازی کا ذکر کرنے لگیں، خدا کی باتیں کرنے لگیں، بیماروں کے لیے دعا کرنے لگیں، پڑوسیوں کو جا کر بات کرنے لگیں، اچھی باتیں کرنے لگیں، سیدھے اور شریف انسان بن جائیں، ہر ایک آدمی گندی گندی باتیں آپ سے کرے گا، کوشش کرے گا روندنے کی۔ پر اگرچہ آپ نے خدا کی باتوں کو اور خدا کی مرضی کو اور جو خدا آپ کی زندگی میں کر رہا ہے اور کیوں خدا نے آپ کی زندگی میں کلام ڈالا ہے، اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا اور سمجھ کے خدا کی باتوں کو قبول کر لیا ہے تو دنیا کے لوگ کتنا بھی روندنے کی کوشش کریں آپ روندے نہیں جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ روندنے کی کوشش نہیں کریں گے، پر آپ روندے نہیں جائیں گے، آپ بالکل صاف اور شفاف نکل آئیں گے۔ جی ہاں، سب سے پہلی عبارت جس کا ہم ذکر کریں گے وہ آپ کو دوسرے سیموئیل کی کتاب اس کے 6 باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں مرقوم ملے گی۔ دوسرے سیموئیل کے 6 باب کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ یہاں ایک آدمی بہت اچھا کام کر کے آ رہا ہے، لڑائی کے میدان سے فتح حاصل کرنے کے بعد آج اس کو ایک اس سے عظیم فتح مل رہی ہے، اور وہ یہ کہ خدا کے عہد کے صندوق کو
जो छीन गया था वापस ला रहा है। ये बहुत बड़ी फतह है। ये लड़ाइयों में फतह पाने से बड़ी फतह है। जब वो लौट के आ रहा था, सुनिए क्या लिखा है। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे। दाऊद के दिल में एक खास बात है, अपने घराने को बरकत दूंगा। दाऊद के दिल में ख्याल है, अपने घराने को बरकत दूंगा। कई दफा आपके दिल में भी ख्याल होता है, आप अपने अंकल से मिलने के जाते हैं बरकत देने के लिए, उनके लिए दुआ करें, उनके बच्ची इम्तिहान में अपीयर होने वाली है उसके लिए दुआ करेंगे। या आपके हाथ में मिठाई होती है कि हमारी दादी का आज जन्मदिन है, हम जाकर के उनको बरकत देंगे। कई दफा अच्छे ख्याल से हम जाते हैं लोगों के यहाँ, अपने पड़ोसी के अच्छे ख्याल से जाते हैं कि भाई आप मकान बनवा रहे हैं, अगर आपको ठड्डी बल्ली की जरूरत पड़े तो हमारे यहाँ से ले लीजिएगा। आप बरकत देने के लिए किसी के जाते हैं, ये बरकत देने के लौटा। तो सुनिए क्या हुआ जी। और साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तिकबाल को निकली। दाऊद के इस्तिकबाल को आज मैं आपको एक अजीब और गरीब इस्तिकबाल दिखाऊंगा। इस्तिकबाल उर्दू का बहुत शब्द है, वेलकम। ये दाऊद के इस्तिकबाल को निकली जी, और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था। ये क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉन्टिंग। कई दफा लोग टॉन्टिंग करेंगे आपको जब आप अच्छी बातें करेंगे। अच्छा हाँ तुम ही तो एक शरीफ हो, बहुत फरिश्ता बन गए हो, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, देखेंगे। दाऊद से कहने लगी उसकी अपनी बीवी शाऊल की बेटी मीकल के आज दाऊद का बादशाह कैसा शानदार लग रहा था। आगे सुनिएगा। जिसने आज के दिन अपने मुलाजिमों की लौंडियों के सामने, जिसने आज के दिन अपने नौकरों की नौकरानियों के सामने, अपने नौकरों की नौकरानियों के सामने अपने को बरहना किया, अपने को नंगा किया। एक बादशाह से उसकी बीवी ऐसी बात कर रही है। और कई दफा ऐसा होता है कि जब अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं तो हमको रौनते हैं लोग। जब कलाम हम सुनते हैं, कलाम अंदर काम करने लगता है तो लोग रौनते हैं। अगर आपने उनके रौंदे जाने को कबूल कर लिया तो आप किनारे वाली जमीन के मानिंदे हैं, राह के किनारे वाली। पर अगर आपकी जिंदगी में वो बातें असर न करी और आप खुदा में आगे बढ़ते गए तो आप उस जमीन के मानिंदे हैं जहां बीज गहरे में गया और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाएगा। हाँ सुनिए क्या है। जब उस औरत ने ऐसे कहा, बरहाना, नंगा किया अपने आप को, सुनिएगा आगे। जैसे कोई बाका बेहयाई से, अरे इतना ही काफी नहीं, कहना जैसा कोई पागल पगलेपन से, बाका बेहयाई से बरहाना हो जाता है, नंगा हो जाता है। इतनी गंदी बात कह दी। कई दफा ये चीजें हमको बर्बाद कर देती हैं, ये चीजें हमको फल लाने से रोक देती हैं क्योंकि हम रौंदे जा रहे हैं। कोई आपको रौंद रहा है आज? हाँ ऐसा हो सकता है कोई आपको रौंद रहा हो। शैतान का तो पूरा इंतजाम है कि आपको रौंदे। जो बीज आपके अंदर डाला गया उसको रौंदे, जो अच्छी बातें डाली गई उसको रौंदे, उसके ऊपर चले। पर दाऊद क्या करता है, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि दाऊद का रिएक्शन क्या है। दाऊद का रिएक्शन देखिएगा। वो कह रही है और कि तू पागल, बेवकूफ, नंगा हो गया था लौंडियों के सामने, नौकरों की लौंडियों के सामने। सुनिएगा आगे। दाऊद ने मीकल से कहा, ये तो खुदावंद के हुजूर था, जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर, मुझे पसंद किया। उसने वहां क्या किया? उसने वहां खुदा की तारीफ करी कि खुदा ने मुझे पसंद किया। ये मैंने खुदा के लिए किया, ये मैंने अपनी ताजीम के लिए नहीं किया, ये मैंने अपनी बड़ाई के लिए नहीं किया, ये तो मैंने खुदा के लिए किया था। मैं नाच रहा था, खुदा के लिए नाच रहा था। जब आप नाच रहे हो, जब आप खुदा के लिए हाथ उठाए हो, जब आप खुदा की ताजीम कर रहे हो, जब खुदा के लिए गीत गा रहे हो, जब आप खुदा का काम कर रहे हो और कोई आदमी आकर के आपको रोना शुरू कर दे तो आप कहिएगा ये मैंने खुदा के लिए किया। और अगर आपने खुदा के लिए किया तो आप रौंदे जाने को महसूस मत कीजिएगा। सुनिए क्या हुआ। उसने एक और बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो खुदा के सामने था जिसने तेरे बाप से ज्यादा मुझे अजीज जाना और मुझे उसकी जगह मुंतखब किया, मुझे बरकत दी। हाँ सुनिए क्या कह रहा। वो क्या कह रहा आगे, एक बात कह रहा है, तो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा। क्या कह रहा है? अच्छा भाई इसके बाद नहीं नाचूंगा, ये कह रहा है। अगर किसी की बीवी, सोचिएगा, सोच करके बताइएगा, अगर किसी की बीवी इस तरह से गुस्सा होकर बाहर निकले और इतनी बातें कह दे तो दोबारा उस आदमी को नाचने की हिम्मत नहीं होगी। पर इसकी बीवी ये कह रही, अपनी बीवी से साफ साफ कह रहा है आबिल मुकाबिल कि मैं तो खुदा के हुजूर नाच रहा था और खुदा के लिए नाचूंगा। एक और बात देखिएगा क्या कह रहा, सो मैं खुदा के हुजूर नाचूंगा। आगे, दैट्स नॉट लास्ट, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा। तो मुझे जलील कर रही है, अभी तो तू जलील कर रही है, अभी तेरे नौकर जलील करेंगे, अभी तेरी बहन भाई जलील करेंगे, अभी तेरे आस पड़ोस के लोग जलील करेंगे। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। खुदा के लोगों, जो बीज गहरे में चला जाता है वो रौंदे जाने का एक्सपीरियंस नहीं करता, रौंदे जाने का तजुर्बा उसको नहीं होता। लोग रौंदा करते हैं लेकिन वो खुदा में इतना महफ रहता है। मैं तो खुदा का हुजूर नाच रहा था,
मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ, तू मुझे रौंद नहीं सकती। और वो रौंदा नहीं गया, बल्कि वो कहने लगा मैं तो खुदा के हुजूर इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा, इससे भी ज्यादा नाचूंगा, इससे ज्यादा कूदूंगा। वो आदमी खुदा की तरफ से बरकत पजीर हुआ और दाऊद अपने मरने के दिन तक अपने खुदा का आबिद रहा और अपने खुदा की इबादत करता रहा। 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाया। खुदा ने सब बड़ी बरकत दी और उसने बाइबल के सबसे ज्यादा हिस्से को यानी 73 गीतों को हमारे और आपके लिए लिखा ताकि हम पढ़ करके बरकत पजीर हो सके। आइए दूसरी जगह चलते हैं। पहले सलातीन के 21 बाब की 7वीं और 25वीं आयत। पहले सलातीन के 21 बाब की 7वीं और 25वीं आयत। जी। उसकी बीवी इजाबेल ने उसे कहा, हाँ, इसराइल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है। इसकी बीवी भी अखयाब बादशाह से कह रही है कि क्या इसराइल की बादशाह पे यही तेरी हुकूमत है कि एक मामूली सा पड़ोसी तूने उससे कहा अपनी जमीन मुझे दे दे, नाबोत जैसा आदमी तेरे सामने है ही क्या, उसने मना कर दिया और तू मान गया। क्या कह रही, सुनिए क्या कहती है। उठ, रोटी खा, खाना खा और अपना दिल बहला। अपना दिल बहला। यजरेली नाबोत का पाकिस्तान, यजरेली नाबोत का पाकिस्तान मैं तुझको दूंगा। मैं तुझको दूंगी। तो क्या है, कई दफा लोग ऐसे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम्हारे से कुछ काम नहीं होगा, मैं तुझे दूंगी। और मैं चाहूंगा 25वीं आयत पढ़िए। 25वीं आयत में क्या लिखा है? 25 आयत में कुछ लिखा है, क्योंकि अखयाब के मानंद कोई नहीं हुआ, अखयाब के मानंद कोई नहीं हुआ जिसने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था। बादशाह बनाया गया था अच्छे काम करने के लिए, अच्छे बीज बोए गए थे, अच्छा काम खुदा करना मांगता था। इसने एक एक करके सब खो दिया। इसकी बीवी ने से रौंद दिया, इसकी बीवी ने से रौंद दिया। आज कितने लोग रौंद दिए गए, बर्बाद कर दिया, गंदी बातें कहकर तबाह कर दिया। क्या कोई आपको रौंदने की कोशिश कर रहा है और आप रौंदे जा रहे हैं? ये बादशाह अपनी बीवी के रौंदे जाने में आ गया, पर दाऊद नहीं आया। दाऊद ने कहा मैं इससे भी ज्यादा जलील होकर नाचूंगा। ये बादशाह बर्बाद हो गया और इसके बारे में आप पढ़ना मुनासिब नहीं समझेंगे। इससे पहली वाली आयत यानी 25वीं आयत मैंने पढ़ाई थी, 24वीं आयत घर जाकर पढ़ेंगे। एक बहुत बुरी बात इसके हक में लिखी है यूसुफ के बारे में। पैदाइश की किताब उसके 49 बाब की 22, 23 और 24 आयत। पैदाइश की किताब 49 बाब की 22, 23, 24 आयत। यूसुफ एक फलदार पौधा है। यूसुफ एक फलदार पौधा। यूसुफ का जिक्र है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फलदार पौधा है। जब किसी फलदार इंसान को देखते होंगे आप तो आप सोचते होंगे इसको किसी ने रौंदा नहीं, बच गया रौंदे जाने से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ना कहिएगा यूसुफ रौंदा नहीं गया। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। ऐसा पौधा है जो पानी के चश्मे के पास लगाया गया जो हो, पानी के चश्मे के पास लगाया गया हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हूँ। ये तो बरकतें लिखी हैं, यूसुफ की बरकतें। क्या यही काफी है? बरकत ही बरकत। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। तीरंदाजों ने उसे बहुत तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा गया। ये जब कोई छेड़ा जाता है बहुत बुरा लगता है। कोई छेड़ता है, कैसे छेड़ते हैं लोग, पता है कैसे छेड़ते हैं? अलग अलग नाम दे देते हैं हमको। लोग छेड़ते हैं अच्छे लोगों को। ये बहुत छेड़ा गया, थोड़ा नहीं बहुत छेड़ा गया। कहां गया तेरा खुदा, कहां गया तेरा खुदा? जेल में जाकर लोग छेड़ रहे हैं। दुआ तो बहुत करता है तेरा खुदा, आता तो कभी है नहीं। छेड़ा गया, वो बहुत छेड़ा गया। तो सोचिए कहां कहां छेड़ा गया होगा। उसके अपने भाइयों ने छेड़ा होगा। बहुत छेड़ा गया, वो बहुत छेड़ा गया। जी हाँ, आगे। और मारा, और न सिर्फ छेड़ा बल्कि मारा। जिक्र नहीं पड़ा हमने बहुत ज्यादा कि मारा गया, पर वो मारा गया। छेड़ा और मारा। हाँ, और सताया है। और मारा ही नहीं बल्कि सताया, रौंद आ गया। मैं बताना मांगता हूं कि आज शैतान का प्रोग्राम है कि हर वो दाना जो डाला जाए उसको रौंदे। पर अगर आप रौंदे जाने की इजाजत उससे देंगे तो आप उन दानों की मानंद होंगे जो सड़क के किनारे गिरे। पर अगर आप शैतान के रौंदे जाने से रौंदे नहीं जाएंगे तो आप उन दानों के मानंद होंगे जो अच्छी जमीन पे गिरे, जो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल है। वो मारा, छेड़ा और सताया। और आगे सुनिए क्या लिखा। मारा, छेड़ा, मारा और सताया। आगे। लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। उसकी कमान मजबूत रही। इन सब चीजों के बावजूद भी वो अपने खुदा में कायम रहा। वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फैलाया। खुदा की यही मर्जी है कि हम भी जब रौंदे जाएं, कोई ना कोई आपको रौंदने के लिए आ रहा है, आप अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए, आपका पड़ोसी आपको रौंदने लगेगा। आप बुरे काम करना शुरू कीजिए, कोई आपको नहीं रौंदेगा। पर अच्छे काम करना शुरू करिए, आपके खानदान के लोग आपको रौंदना शुरू कर देंगे, आपके दोस्त आपको रौंदना शुरू कर देंगे। शराब पीना छोड़ दीजिए, लोग आपको क्या नामर्द कहना शुरू करेंगे। अरे नामर्द हो यार, तुमने शराब पीना छोड़ दिया।
रोना शुरू कर देंगे, पर आप तहिया कर लीजिए कि हम बीज को अपने अंदर जाने देंगे, और जब वो लोग हमको रौंद देंगे तो हम रौंदे नहीं जाएंगे, और यूं हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाएंगे। ये मेरी दुआ है कि जब लोग आपको रौंदे तो आप यूसुफ की मानिंद निकले, आप दाऊद की मानिंद निकले, ना कि अखयाब की मानिंद। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाइए, हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरी मर्जी ये है कि तेरे लोग जब रौंदे जाएं तो तुझ में कायम रहें और हिम्मत न हारें, बल्कि यूसुफ की मानिंद फलदार पौधा बने रहें और दाऊद की मानिंद तुझ में कायम रहें। खुदा बाप, हम पर रहम कर, और आज उन तमाम लोगों पर रहम कर जो रौंदे जाने से परेशान हैं और जो फल नहीं ला रहे। खुदावंद मदद कर, जगह जगह जो लोग आज इस कलाम को सुन रहे हैं और आज सर झुकाए हैं, खुदा बाप होने दे ये सर उनका आसमान के खुदा के हुजूर हो। मदद कर प्यारे खुदावंद, सब कुछ बदल दे। और आज जब प्यारे खुदावंद इस प्रेयर लाइन को कॉल करके लोग दुआ की दरखास्तें भेज रहे हैं, तो इनकी दुआ की दरखास्तें सुनी जाएं, सब कुछ बदल जाए। मदद कर प्यारे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।